ایک سخت جان مسافر ہمارے سورج کی سلطنت کو پار کر چکا ہے۔ یہ مسافر 35 سال پہلے ہماری نیلی زمین سے ہی روانہ ہوا تھا، اور اس کھوجی کے سفر کا مقصد قدرت کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ یہ مسافر 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی تیز پرواز کرتا ہوا سورج کے گرد گھومنے والے تمام سیاروں اور سیارچوں سے آگے جا چکا ہے۔ یہ بات ہے 1960 کے آغاز کی۔ یہ ایسا دور تھا جب سائنس کی دنیا میں خلائی تحقیق کے آغاز کو صرف 15 برس ہوئے تھے۔ انسان ایک بار چاند پر قدم رکھنے کے لیے بے چین تھا۔ دنیا بھر کے خلائی تحقیق کے ادارے دن رات ایسے مشن لانچ کرنے کی منصوبہ بندیاں کیا کرتی تھیں جن کی مدد سے کسی طور چاند پر دوسروں سے پہلے پہنچا جا سکے، یا کوئی ایسی مشین ہی تیار کی جائے جو چاند پر جائے اور پل پل کی خبریں ہماری اس زمین کی لیبارٹری میں بھیج سکے۔ ایسے میں کون سوچ سکتا تھا کہ دو سرفرے ریاضی دان ایک ایسی مشین بنانے کا سوچ رہے ہیں جو خلا سے آگے، چاند سے پار، سورج کے سنہرے تھال سے بھی پرے چلی جائے گی۔ دیوانوں نے سوچا اور کر دکھایا۔ مائیکل اور گیری دو امریکی ریاضی دان تھے جو امریکی خلائی تحقیق کے سب سے بڑے ادارے ناسا میں کام کر رہے تھے۔ کسی بھی خلائی مشن کو خلا میں بھیجنے کے لیے بہت زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس مشین کا وزن اور سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور خرچ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں سائنسدان ایک ایسی مشین کی تیاری کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے جسے کم سے کم ایندھن کے ساتھ خلا میں بھیجا جا سکے تاکہ اس کا خرچ بھی کم آئے اور مشین کی جسامت بھی زیادہ نہ ہو۔ گیری نے اس دوران خلائی تحقیق کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک دریافت کر ڈالی۔ گیری نے بتایا، اگر سیاروں کی کشش ثقل کو استعمال کیا جائے تو ہم خلائی گاڑیوں کو زمین کے مدار سے نکالنے کے بعد بغیر کسی ایندھن کے بھی لامحدود فاصلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ دریافت بھی سامنے آئی، اگر ایک عرصہ کے بعد یعنی 1976 اور 1989 کے درمیان اگر کسی خلائی گاڑی کو مخصوص طریقے سے خلا کی مخصوص سمت پر پرواز کرنے دیا جائے تو وہ بغیر کسی زمینی ایندھن کے مریخ، مشتری، زحل، نیپچون اور پلوٹو تک جا کر بآسانی تحقیقات کر سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ سب سیاروں کے قریب سے گزر کر تصاویر اور دوسرے سگنلز ناسا لیبارٹری میں بنا کسی رکاوٹ کے بھیج سکتی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی دریافت تھی، لیکن اس میں ایک اور بہت بڑی مشکل تھی، وہ یہ کہ ایسا صرف انہی 3 سالوں کے دوران کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہ وقت ضائع کر دیا جاتا تو کائنات میں دوبارہ ایسا موقع 176 سال بعد ملنا تھا۔ اس وجہ سے فوراً کام کا آغاز کر دیا گیا اور سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نہیں بلکہ اس مخصوص اور محدود وقت میں 4 تحقیقاتی خلائی مشن بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا جو تمام سیاروں کے گرد گھوم کر مکمل معلومات زمین پر بھیجیں گے۔ لیکن اس مشن کے لیے جتنی رقم چاہیے تھی وہ امریکی کانگریس نے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ امریکہ کو روس سے مقابلے کے لیے بہت سے جنگی ہتھیار چاہیے تھے اور اس کے بجٹ میں خلائی تحقیق کے لیے زیادہ رقم نہیں تھی۔ لیکن ناسا نے ان تک محنت کے بعد کانگریس سے 4 کے بجائے 2 خلائی مشن بھیجنے کا بجٹ منظور کروا ہی لیا۔ ان منصوبوں کو وویجر 1 اور وویجر 2 کا نام دیا گیا۔ وویجر 1 کو خاص طور پر مشتری اور زحل کی تحقیق کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس نے خلا میں سفر کرتے ہوئے زیادہ وقت ان سیاروں کے گرد گھومنا تھا۔ لیکن جب اسے ان سیاروں تک پہنچانے کے لیے راستوں اور وقت کا تعین ہونے لگا تو پتہ چلا کہ اسے 10,000 مختلف راستوں اور مختلف سمتوں سے بھیجا جا سکتا ہے۔ اس لیے جلد ہی وویجر 2 کی تیاری بھی شروع کر دی گئی، جو مشتری اور زحل پر زیادہ تحقیق کرنے کے بجائے ان تمام کے قریب سے گزرتا ہوا آگے نکل جائے گا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کی معلومات زمین پر ناسا ہیڈ کوارٹر بھیجے گا۔ آج ہم نظام شمسی کے تمام سیاروں اور لاتعداد چاندوں کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ انہی 2 مسافر وویجر 1 اور 2 کی وجہ سے ہے۔
कायनात में कोई हम जैसा है, शायद हम कायनात में तन्हा ना हों, कायनात में शायद कोई हम जैसी ज़हीन मखलूक हो। इसी ख्याल की वजह से इन मुसाफिरों को ऐसा सामान मुहैया किया गया है, अगर इनके रास्ते में कोई ऐसी जगह आए जहाँ कोई हम जैसी या हमसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक हो तो वो हमसे राब्ता कायम करे। वॉयेजर 1 और 2 दोनों में इसी मकसद के लिए एक गोल्ड प्लेट लगाई गई, जिस पर हमारी नीली ज़मीन दुनिया के बारे में अहम मालूमात इशारों में दर्ज हैं। ये सोने की एक गोल प्लेट है जिसके कवर पर कुछ इशारे और कवर के अंदर एक गोल डिस्क है जिस पर ऑडियो और वीडियो की सूरत में बहुत कुछ महफूज कर दिया गया है। गोल्ड प्लेट के बैरूनी हिस्से पर इशारों के अलावा एक 2 सतरी पैगाम भी दर्ज है, ताकि अगर कभी ये मुसाफिर किसी ज़हीन खलाई मखलूक तक पहुंच जाए या वो इसे पकड़ लें और पढ़ सकें तो पढ़ लें। इस पर लिखा है, ये दूर से बसने वाली एक छोटी सी दुनिया की तरफ से तोहफा है। ये एक हवाला है हमारी मौसीकी, हमारे एहसासात, हमारी साइंस, हमारी ज़िंदगियों और हमारी आवाज़ों का। हम अपने हिस्से की ज़िंदगी जी रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ भी जिएं। वॉयेजर 1 और 2 में एक तवील सूती पैगाम भी महफूज है जो हर वक्त बजता रहता है, और इसमें दुनिया की 52 ज़बानों में खुश आमदेद भी कहा गया है, और ये पैगाम हर वक्त खिला में नशर होता रहता है। इन 52 ज़बानों में उर्दू, अरबी, पंजाबी भी शामिल हैं, यानी आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस वक्त ज़मीन से अरबों मील दूर कोई है जो पुकार पुकार कर कह रहा है, अस्सलामु अलैकुम। हम ज़मीन पर रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये 100% वही फिक्र है जो मशीन में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इसमें दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी ज़ुबानों में 100 मिनट की मौसीकी भी रिकॉर्ड करके चला दी गई है, और इसमें छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवरों की तमाम आवाज़ें इस मशीन में महफूज कर दी गई हैं। अगस्त और सितंबर 1977 ईस्वी में दोनों खलाई खोजियों को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से एक एक करके हमेशा के लिए अलविदा कर दिया गया, क्योंकि अब इन्हें कभी ज़मीन पर वापस नहीं आना था। 3 माह में दोनों मुसाफिर मरीख को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गए। वॉयेजर 2 का मकसद ज़मीन के बाद आने वाले 4 सियारों मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून के पास से गुजरना और इनकी अमूमी तहकीकी तस्वीर उतारते हुए आगे बढ़ जाना था, जबकि वॉयेजर 1 का मकसद ख़ास तौर पर मुश्तरी और ज़ोहल के गिर्द ज़्यादा देर तक रुकना और तहकीकात करना था। वॉयेजर 1 2 साल में निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सियारे तक पहुंच गया। इसके ज़िम्मे पहला काम मुश्तरी के चांदों पर तहकीक करना, इनकी तस्वीर बनाना और वहां मौजूद धातों का पता लगाना था, और इसके लिए इसके पास सिर्फ 48 घंटे थे। मुश्तरी के गिर्द 4 बड़े चांद हैं जिनमें लौ सबसे मशहूर और तवज्जो हासिल करता था। वॉयेजर 1 ने पहली बार हमें ये मालूमात भेजी कि लौ पर सल्फर के आतिशफशां हैं। सल्फर इंतहाई आतिशगीर और चमकदार मादा है जो जलने पर नीली आग पैदा करता है, जो बहुत ज़्यादा तबाही लाती है क्योंकि इसे पानी डालकर बुझाना नामुमकिन होता है। वॉयेजर 1 ने हमें बताया कि इस चांद पर सल्फर के आतिशफशां हैं जो हर वक्त सल्फर उगलते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी, क्योंकि अब तक इंसान यही समझता था कि आतिशफशां पहाड़ सिर्फ ज़मीन पर ही पाए जाते हैं, लेकिन इस दरियाफ्त ने ख्यालात तब्दील कर दिए। इसके अलावा इसी बरस वॉयेजर 1 ने एक और बहुत शानदार दरियाफ्त की जिसके बारे में इंसानियत पहले रत्ती भर भी नहीं जानती थी, और ये दरियाफ्त थी मुश्तरी के एक और बहुत बड़े चांद यूरोपा की। यूरोपा के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि यूरोपा लौ की चमक के पीछे छुप जाया करता था, और कदीम माहिरीन फल्कियात से लेकर आज के जदीद माहिरीन तक इसकी मौजूदगी से लाइल्म थे। लेकिन सिर्फ यही हैरत की बात नहीं थी कि लौ के करीब एक और इस जितना बड़ा जिस्म मौजूद है, बल्कि हैरत की बात तो एक और थी जिसने खलाई तहकीकात करने वालों को हैरान कर दिया था।
और वो ये कि सल्फर की आतिशफशां के पीछे छुपा ये चांद बिल्कुल कुतुब शुमाली जैसा है। इसकी सतह पर मीलों मोटी बर्फ की तह है जिसके नीचे यकीनन पानी का समंदर होना चाहिए और पानी में किसी न किसी शक्ल में ज़िंदगी भी होनी चाहिए। अगर ये अंदाज़ा भी दुरुस्त है तो यकीनन हम कायनात में ज़मीन के अलावा किसी और जगह पर ज़िंदगी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन बर्फ़ की इस मीलों मोटी तह के नीचे कैसे झांका जाए? नासा समेत दुनिया भर के खलाई तहकीक के इदारे एटमी धमाकों समेत कई मंसूबों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन बजट सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आन खड़ा होता है। उम्मीद है कि दुनिया को आपस की नफरतों और हथियारों की तैयारी से फुर्सत मिलेगी तो वो बजट का बड़ा हिस्सा खलाई तहकीक और ग़िज़ाई ज़रूरियात जैसी अहम तरीन चीज़ों के लिए बचाएंगे। एक दिन हमारा ये मुसाफिर बीमार हो गया। अगस्त 1981 में वॉयेजर 2 एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। वॉयेजर 2 पर एक कैमरा लगाया गया था जिसे ज़मीन से कंट्रोल किया जाता था और जिस तरफ चाहे इसका रुख मोड़कर तस्वीर बनाई जाती थीं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कैमरे के गियर बॉक्स का तेल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से कैमरे को बआसानी इधर उधर मोड़ना नामुमकिन हो गया। अब अगर इसे ठीक ना किया जाता तो वॉयेजर 2 को खिला में भेजने का मकसद ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि इसके कामों में से अहम तरीन काम निज़ाम शमसी के सियारों, चांदों, सियारचों और दूसरे लातादाद खलाई इज्साम की तस्वीर ज़मीन पर भेजना था। सारे मंसूबों को बचाने के लिए साइंसदानों की एक टीम दिन रात इस काम में लग गई। कैमरे के हैंडल को ठीक करने के लिए 85 मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए, लेकिन सब नाकाम रहे। लेकिन हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। 86वां तरीका काम कर गया और हैंडल इस हद तक ठीक हो गया कि इससे मर्जी का काम लिया जा सके। लेकिन उस वक्त तक वॉयेजर 2 ज़ोल सियारे को पीछे छोड़ता हुआ यूरेनस और नेपच्यून के करीब पहुंच चुका था। वॉयेजर 2 ने ठीक होने के बाद फिर से काम शुरू कर दिया और यूरेनस सियारे के गिर्द घूमने वाले 10 चांद दरियाफ्त किए, जिनमें से एक चांद मोरेंडा ऐसा भी था जिस पर बर्फ की 12 मील ऊंची दीवार दरियाफ्त हुई। वॉयेजर ने जब 1986 में इस दीवार की तस्वीर ज़मीन पर भेजी तो साइंस के हलकों में खलबली मच गई। लेकिन ये खलबली ज़्यादा देर कायम ना रह सकी, क्योंकि इन्हीं दिनों इंसानियत को एक बहुत बड़ा सदमा सहना पड़ा जब खलाई तहकीक के लिए जाने वाले एक खलाई जहाज़ चैलेंजर को एक खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे में न सिर्फ जहाज़ तबाह हो गया, बल्कि इसमें सवार 7 खलाबाज जलकर धुआं बन गए और खला में तहलील हो गए। इन्हीं खलाबाजों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। वॉयेजर 2 ने 1989 में हमारे निज़ाम शमसी के आखिरी सियारे नेपच्यून की तस्वीर भेजी तो पहली नज़र में हर कोई उछल पड़ा, क्योंकि तस्वीर के मुताबिक नेपच्यून पर सफ़ेद बादल तैर रहे थे और सियारे की सतह नीले समंदरों से नीली हो रही थी। बहुत से लोग ये समझे कि एक और ज़मीन दरियाफ्त हो गई है, लेकिन वॉयेजर 2 ने जब ढेर सारी मज़ीद तस्वीर भेजी और अपने साइंसी आलात से जायज़ा लेकर रिपोर्ट नासा हेडक्वार्टर भेजी तो राज खुला। दरअसल नेपच्यून पर सफ़ेद बादल तो हैं, लेकिन ये ज़मीन जैसे बादल नहीं हैं, बल्कि ये मीथेन गैस के जमे हुए बादल हैं जो सियारे के गिर्द घूमते रहते हैं। सियारे की सतह का नीला रंग नीले समंदरों की वजह से तो है, लेकिन ये पानी के समंदर नहीं हैं, बल्कि ये मीथेन गैस के समंदर हैं। हमारे मुसाफिर की अरसाल करदा ये तस्वीर निज़ाम शमसी को एक किस्म का खुदा हाफिज था। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई सियारा इसका मुंतज़िर नहीं था। अब इसे किसी सियारे की तस्वीर नहीं भेजनी थी और इसके रास्ते में हमारे निज़ाम शमसी के किसी सियारे को कभी नहीं आना था। मुसाफिर को एक ना ख़त्म होने वाली खिला की तरफ बढ़ जाना था, जहां इसका साथी वॉयेजर 1 पहले से परवाज़ कर रहा था। वॉयेजर 1 ने 1989 में एक ऐसी तस्वीर भेजी जो रहती दुनिया तक हमें हमारी औकात याद दिलाती रहेगी। जब हमारा ये दोस्त ज़मीन से 7.5 अरब मील दूर था तो इसने एक बार पलटकर ज़मीन की जानिब देखा और अपने कैमरे में एक तस्वीर बनाई, क्योंकि इस मुसाफिर को अब कभी ज़मीन पर लौट कर नहीं आना था और मज़ीद आगे जाने पर वो ज़मीन को देख भी नहीं सकता। ये तस्वीर जब ज़मीन पर पहुंची तो इसे इंसानी तारीख़ की सबसे शानदार और यादगार तस्वीर कहा गया।
تصویر میں زمین ایک بہت ہی مدھم سا نیلے رنگ کا ذرہ محسوس ہوتی ہے۔ اس تصویر پر اس دور کے ایک عظیم فلاسفر اور سائنسی مصنف کارل سیگن نے ایک شاندار کتاب بھی لکھی تھی، جس کا ایک پیرا انسانیت کی پوری تصویر کشی کر دیتا ہے۔ سورج کی سلطنت کا کنارہ آ گیا۔ وویجر 1 اور 2 اس وقت سورج کی سلطنت کو پار کرنے والے ہیں۔ خاص طور پر وویجر 1 تو کائنات میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جس سے آگے ہمارے نظام شمسی کا مقناطیسی میدان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے خلا سے آنے والی خطرناک شعاؤں اور دوسرے خطرات کا سامنا ہے۔ لیکن ہمارے دونوں مسافر ہمیں اب بھی خلا سے ملنے والی ہر معلومات بذریعہ سگنلز اور تصاویر زمین پر بھیجتے رہیں گے اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کی یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ وویجر 1 سورج کی حدوں سے نکلنے والا پہلا مشن ہوگا